today we will have a lecture on engineering mechanics. So already in previous lectures we have started that is moment of inertia. So we have solved the numericals related with moment of inertia. In today's lectures we will start unit number 4, which deals with the impact और impulse momentum. ठीक है ना. So these are the two different things are covered in unit number 4. Unit number 4 basically deals with the that is when a body it has been moving, what are the different forces acting on a body when it is moving, and what is the effect of forces on a moving body. है ना, कोई भी चीज़ मूव हो रही है तो उसके प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व इन दिस यूनिट नंबर 4. ठीक है. So unit number 4 is also very important. So first we will have some definitions of unit number 4. Then we will try to solve the problems related with unit number 4. ठीक है. First of all, what is impact? Impact is nothing but sudden there is a collision. The act of collision मतलब when two particles collide to each others. अगर कोई दो मूविंग व्हीकल्स है, दो पार्टिकल्स है या फिर मूविंग व्हीकल्स है, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर्स, द एक्ट ऑफ कोलिजन ऑफ टू और मोर बॉडीज इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट. मतलब कोई भी चीज़ दो मूविंग बॉडीज थे वो एक दूसरे से डैश हो गए हैं या फिर कोलाइड हो गए हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट द इम्पैक्ट. ठीक है. द एक्ट ऑफ कोलिजन ऑफ टू और मोर बॉडीज इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट. During impact, loss of energy takes place. There may be damage to the vehicles, there may be damage to the moving bodies, है ना. तो there is loss of energy when two bodies they are collided each others. When there is a collision of two bodies there will be loss of energy. ये तो एक imagine करना है, ये मतलब there is a reality that there will be a loss of energy. ठीक है ना. तो such concept is nothing but the impact. Impact क्या है? Collision of the two bodies. ठीक है. Impact. What is impulse? Next is impulse. Impulse is a product of force and time. ठीक है. Impulse क्या है? It is nothing but the product of force and time. It is nothing but the product of force and time. This is again very important. Impact and impulse. तो impulse is nothing but force into time. What is momentum? Momentum क्या रहेगा? What is momentum? तो momentum is the product of mass and velocity. जब mass and velocity when they are multiplied to each others, when the product of mass and velocity is there, it is nothing but the momentum. ठीक है ना. The product of mass and velocity is called as momentum. तो momentum is equals to mass into velocity. तो mass into velocity, तो m stands for the suffix given to the mass and v stands for the velocity. तो mass into velocity is nothing but the momentum. ठीक है ना. तो अब इम्पैक्ट का मोमेंटम का क्या लिया इसने, एफ टी इज इक्वल्स टू दिस इम्पल्स और मोमेंटम इट इज़ वन द सेम. तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है ना. अगर इनिशियली में द वेलोसिटी ऑफ एग्जांपल में द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10. ठीक है ना. द फाइनल वेलोसिटी इज़ 20. तो अब टोटल वेलोसिटी क्या होगा फिर, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, तो 20 माइनस 10 द फाइनल वेलोसिटी विल बी 10. ठीक है ना. तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u. तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv माइनस mu. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज इलास्टिक इम्पैक्ट. व्हाट इज इलास्टिक इम्पैक्ट? व्हेन टू बॉडीज कोलाइड they deform at first, then they spring apart because of the actions of restoring electric force. ठीक है ना. इलास्टिक फोर्स की वजह से क्या होता है, वो एक्सपांड होते हैं. ठीक है ना. तो इलास्टिक इम्पैक्ट क्या है, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे आर डिफॉर्म्ड एट फर्स्ट, then they spring apart because of the action of the restoring elastic force. मतलब कोई भी दो बॉडीज क्या हो रही है, एक तो इम्पैक्ट हो रही है and there is repulsion, or when the two bodies they are moving in the opposite directions. पहले एक directions उसका क्या था, towards the point था. अब क्या हो गया, after collisions it is away from the point हो गया. दोनों जो after collisions क्या हो रही है, they are moving away from the point. ठीक है ना. तो this is nothing but the elastic impact. Next is law of conservation of momentum is again very important. The total momentum of the system before collisions is equals to the total momentum of system after collisions. ठीक है ना. कोई एक बॉडी मूव हो रही है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है, अभी मोमेंटम अपन ने पढ़े थे. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है ना.
कोई एक मास है बॉडी का और कोई एक वेलोसिटी से मूव हो रही है, जब कोई एक मास और वेलोसिटी से मूव होकर दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से देयर इज कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज विच इज़ हैविंग सम मास एंड सम वेलोसिटी। तो पहले देखो यहाँ पे एक स्मॉल फिगर ड्रॉ किया है। m1 इज द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड इट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी एज u1। u1 से क्या हो रही है, वो मूव हो रही है। अब दूसरी भी बॉडी क्या है, m2 इज द अनदर बॉडी, अगेन इट इज हैविंग मास ऑफ m2 एंड वेलोसिटी ऑफ u2। अब दीज टू बॉडीज बिफोर कोलिजन से, बट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अब ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को कोलाइड हो गए। अब कोलिजन होने के बाद में क्या हो गया, दे आर डिस्पर्सिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन्स व्हाट इज द वेलोसिटी, तो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन्स, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन्स का फिगर हो गया, आफ्टर कोलिजन ये कोलिजन का फिगर हो गया, आफ्टर कोलिजन का ये फिगर हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दोनों मूव हो रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब वेलोसिटी भी चेंज हो गई है, पहले u था तो अब v बन गया है, पहले u1 था अब v1 हो गया, नेक्स्ट u2 था m2 मास के लिए, अब फाइनल वेलोसिटी क्या बन गया, v2 फॉर मास m2, ठीक है। तो what this law of conservation of momentum says, the total momentum of the system before collision, collision होने से पहले, that is equals to collision after collisions, the momentum of the system after collisions। तो mass m1 u1 कितने bodies है, there may be n number of bodies, it is just the example of two bodies, there may be 3 or 4 bodies also। तो m1 u1 plus m2 u2, that is before impact its velocity and mass, and that is equals to after impact its velocity and mass, इम्पैक्ट होने के बाद में उसका मास और वेलोसिटी। तो m1 v1 प्लस m2 v2, दिस कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज़ नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। This formula is used to solve the problems, various problems are there, moving bodies, there may be moving bodies when they are when they collide each others, when the collision of collision it has been caused between the two bodies, what is the formula before and after impact, before and after the formula for momentum, the m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। next again important is coefficient of restitutions। coefficient of restitution क्या है, what is the coefficient of restitutions, it is the ratio of relative velocity of colliding bodies after impact, मतलब impact होने के बाद में जो velocities थी उसका ratio to their relative velocity before impact, पहले after collision के बाद में जो velocities थी divided by before collisions the velocities, it is represented by small e, ठीक है ना। restitution कैसा denote कर रहा है, देखो small e से, so it is denoted by small e is equals to coefficient of restitutions। so what is the formula for this, relative velocity after impact upon relative velocity before impact, this is the coefficient of restitution। e is equals to v2 final velocity after collision, so v2 minus v1 that is equals to u1 minus u2, or it is in similar way minus v1 plus v2 and u1 minus u2, you will see minus sign why it has been taken care, but final velocity divided by initial velocity, the difference in final velocity upon difference in initial velocity। next is what is loss of energy, when there is a collision between the two bodies there may be loss of energy, ठीक है ना। तो what is loss of energy, loss of kinetic energy before impact and loss of kinetic energy after impact। तो before impact में क्या रहेगा, it is having a velocities, what is kinetic energy का formula क्या रहता है, देखो you have studied in basic in physics also, what is kinetic energy, हाफ mv स्क्वायर, रहता है, हाफ mv स्क्वायर क्या रहता है, kinetic energy का formula, ठीक है ना। तो वही kinetic energy का सेम फार्मूला एक दो बॉडीज़ के लिए वी आर फाइंडिंग आउट फॉर टू बॉडीज़, है ना, विच इज़ हैविंग m1 एंड u1 एज द मास। तो बिफोर इम्पैक्ट में वेलोसिटीज़ क्या था, देखो u1 u2 था दोनों बॉडीज़ का, और मास क्या था m1 m2। तो जस्ट वही फार्मूले में अपन ने थोड़ा सा एक हाफ कॉमन लेके क्या किए, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। अब आफ्टर इम्पैक्ट में क्या होगा, देखो आफ्टर इम्पैक्ट में वेलोसिटीज़ क्या था, v था, ठीक है ना, v1 v2, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आपने पढ़े होगे फिजिक्स में फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो सेम फार्मूला वी आर यूजिंग फॉर इनिशियल, दैट इज एट बिफोर इम्पैक्ट, एंड वी आर यूजिंग फॉर आफ्टर इम्पैक्ट, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट।
नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो क्या होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या रहेगा. काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट है ना. बिफोर इम्पैक्ट माइनस आफ्टर इम्पैक्ट. नेक्स्ट इज दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट फार्मूला इज देयर फॉर वेलोसिटीज. अगर वेलोसिटी अगर मेरे पास प्रॉब्लम में इट इज़ नॉट गिवन एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एंड हाइट इज गिवन. तो विद हेल्प ऑफ दिस टू वी कैन इजीली फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी. यू निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या है. देयर इज अ फार्मूला फॉर इनिशियल वेलोसिटी एज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. क्या फार्मूला है देखो 2gh स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. G stands for the gravity and H stands for the height of impact. ठीक है. M is equals to अब mass और weight में क्या difference है. What is weight? Weight is the product of mass into gravity. Product of mass into gravity. Weight क्या रहता है. It is nothing but the product of mass into gravity. ठीक है ना. तो अब mass को निकालने के लिए क्या किया अपन ने. weight divided by gravity किए. M is equals to W upon G. This W upon G. W stands for weight and G stands for the gravity. है ना. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. mv स्क्वायर बाय आर. mv स्क्वायर बाय दिस आर द small formulas which you have already studied in the physics and this will be used for the finding out initial velocity. अगर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh लेना है आपको. अगर मास गिवन है मतलब वेट गिवन है और ग्रेविटी गिवन है वी कैन इजीली फाइंड द मास. वेट अपॉन जी से क्या निकालेंगे आप. मास निकाल सकते हैं. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे आप. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या रहता है. व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. और टोटल काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन क्या रहेगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और वर्क डन क्या रहता है. फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. ठीक है. और काइनेटिक इट इज ऑल्सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. तो डेल्टा के ई बोलते हैं. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने बताया. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है. हाफ एम इंस्टेड ऑफ एम वी वन स्क्वायर होता है. तो इंस्टेड ऑफ हाफ एम वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस एम बाय डब्ल्यू बाई जी. ठीक है ना. यहाँ पे क्या किया आपने डब्ल्यू बाई जी से इसको रिप्लेस कर दिया ना डब्ल्यू बाई जी. ठीक है ना. तो डब्ल्यू हाफ डब्ल्यू बाई जी स्क्वायर दैट इज इन ब्रैकेट वी स्क्वायर का फॉर्मूला रहता. तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है ना. तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वी आर फाइंडिंग आउट वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन अपन ने निकाले थे. तो फार्मूला क्या बन गया. हाफ डब्ल्यू जी इन ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. दिस फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिंपल वे में तो दिस फार्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट. तो दिस आर द बेसिक्स ऑफ इम्पैक्ट एंड इम्पल्स जो अभी अपन ने पढ़े थे. उसी को थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में वी विल राइट डाउन द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. वी ए एंड वी बी अगर निकालना है तो दैट इज मोमेंटम. दैट इज द लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है. बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू आफ्टर इम्पैक्ट. तो बिफोर इम्पैक्ट की वेलोसिटीज क्या रहती है. यू रहती है. तो एक बॉडी के लिए यू ए बोल दिया या अनदर बॉडी वी हैव टेकन एज यू बी. वैसे वी ए एंड वी बी इज द वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. और एम ए एम बी दिस आर द मासेस. What is coefficient of restitutions minus VA plus VB upon UA plus UB. ठीक है. तो माइनस साइन इज अगेन इंपॉर्टेंट. माइनस VA plus VB डिवाइडेड बाय UA plus UB. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. सॉल्व बोथ इक्वेशंस टू कैलकुलेट V एंड VB. ये दोनों इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे. अगर समझो क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटीज. ठीक है. कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. इम्पैक्ट होने के बाद क्या वेलोसिटी रहेगी दोनों बॉडीज़ की. तो वी और वी बी निकालना है. दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. तो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2. तो दिस टू फार्मूलाज आर यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. ये दोनों फार्मूले से क्या निकालेंगे आप. वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट. ठीक है. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट इज सॉल्व बोथ इक्वेशंस टू कैलकुलेट वी एंड वी बी. नोट इफ बॉडी इज एट रेस्ट. तो बॉडी अगर रेस्ट पे रहेंगी तो क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. If the body is at rest, velocity before impact that is u will be 0. ठीक है.
इफ बोथ बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर इम्पैक्ट, अगर दोनों बॉडीज मिलने के बाद एक साथ जाती है तो क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट वी ए इज इक्वल टू वी बी. दीज आर द स्मॉल, देर इज अजम्पशन इन द सेंस स्मॉल लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अगर समझो बिफोर इम्पैक्ट अगर बॉडी इज एट रेस्ट, बिफोर इम्पैक्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. और इम्पैक्ट होने के बाद में दोनों साथ में जा रहे हैं, आफ्टर इम्पैक्ट द टू बॉडीज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शंस विद सेम वेलोसिटी, तो क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू वी ए दैट इज इक्वल टू वी बी. Next is third point is nothing but if velocity of body A before impact that is equals to UA is not given, then we can find out with the help of the formula which we have already taken. So UA is equals to square root of 2G HA. Okay. So these are the basics regarding how to solve the problems. अगर कोई चीज़ problem में given नहीं है तो with the help of these things we can easily find out. फर्स्ट सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था कि अगर समझो बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएंगी, यू क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा. और फाइनल वेलोसिटी अगर समझो दोनों इम्पैक्ट होने के बाद में इट इज़ मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, तो क्या बन जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू वी बी. और सपोज इनिशियल वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है, तो क्या होगा, यू ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2G HA. ठीक है. तो टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी दिस फार्मूला इज यूज. काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर था. तो बिफोर इम्पैक्ट के लिए यू ए यू बी आ गया, आफ्टर इम्पैक्ट के लिए वी ए वी बी आ गया. लॉस के लिए क्या होगा, दैट इज़ बिफोर इम्पैक्ट. ये बिफोर इम्पैक्ट मतलब यू वाला जो फार्मूला है वो माइनस आफ्टर इम्पैक्ट वाला फार्मूला, लॉस ऑफ एनर्जी. एंड व्हाट इज़ द यूनिट फॉर दिस, दैट इज़ मोमेंटम इज नथिंग बट जॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू कैलकुलेट एवरेज इम्पैक्ट वैल्यू अगर निकालना है, एवरेज इम्पैक्ट वैल्यू, तो यूज़ इम्पैक्ट मोमेंटम इक्वेशंस. तो एफ टी दैट इज वर्क डन, क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू मूवमेंट इनटू वेलोसिटीज. तो मूवमेंट एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ये सारे मतलब ये है. We will see while solving the problems, we will actually solve this concept, we will actually use this concept while solving the problems. ठीक है. Okay, so we will try to solve the problem. A sphere is a circular body. In other words, it is a circular body. It is moving. It is having a weight. Sphere A waving in the sense weight. Waving का क्या मतलब, weight. उसका weight कितना है बॉडी का, 100 न्यूटन है. ठीक है ना, 100 न्यूटन इज द weight of that body. स्पीयर ए वेविंग 100 न्यूटन्स मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है. ठीक है ना. तो ये जैसे मेरे पास एक एक्स एक्सिस है जिसका ऊपर मूव हो रहा है, वेट ए का जो है वो ए मूव हो रहा है एक्स एक्सिस पे. ठीक है ना. दिस इज ए विच इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ये दिस इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है. ठीक है. 100 न्यूटन्स मूव ऑन एक्स एक्सिस इन इट्स पॉजिटिव डायरेक्शंस. कहाँ मूव हो रहा है, राइट साइड में, विद वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी क्या है, वी ए यू ए कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके. The initial velocity for this is UA is equals to UA कितना है, initial velocity कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड. Another sphere B of weight, उसका weight कितना है, another square का weight कितना है, 80 न्यूटन से, moving on the same axis but in the opposite directions. अब ये कैसा है कि weight उल्टे की तरफ मूव हो रहा है. ठीक है ना. सेकेंड वाला जो था वो लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, B it is moving in reverse directions. तो I have drawn this in reverse directions. अब उसका भी वेलोसिटी क्या है, यू बी. ठीक है ना, यू बी इट इज़ मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शंस. उसका वेट कितना है, 80. मूविंग ऑन द सेम एक्सिस बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, अप्रोचेज इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. मतलब इसका सेकेंड वाले का 6 मीटर है और पर सेकेंड है, और फर्स्ट वाले का 4 मीटर पर सेकेंड है. एंड impinge on it if the coefficient of restitutions E is given as, E कितना given है देखो क्वेश्चन में, E that is equals to E it has been given as 0.7. ठीक है. E it has been given as 0.7. Calculate the velocities of two spheres after impact. मतलब U B A और B B निकालना है आपको. आफ्टर इम्पैक्ट की वेलोसिटीज दैट मीन्स वी ए एंड वी बी निकालना है. तो अभी मैंने बताया था कि दिस टू स्टेप्स आर यूज टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी. वी और वी बी के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2.
ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे आप। और रेस्टिट्यूशन का फार्मूला ई इज इक्वल्स टू माइनस वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय यू ए प्लस यू बी। ये फार्मूला, दोनों फार्मूले से वी हैव टू फाइंड आउट वी ए एंड वी बी। तो हियर इट हैज़ बीन गिवन इन न्यूटन्स। तो हियर फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मास। तो मास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रेविटी से डिवाइड कर लो। तो m1 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई जी और m2 इज इक्वल्स टू 80 बाई जी। जी 9.81 रहता है, तो वी विल नॉट पुट द वैल्यूज ऑफ जी बिकॉज इट विल बी कैंसल्ड। तो अभी ऐसे ही रहने दो, 100 डिवाइड बाई जी और 80 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट, दैट इज 100 न्यूटन का जो था वेट, उसका इनिशियल कितना था 4। तो हियर वी हैव टेकन दिस 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वाले का कितना था 6। ठीक है। तो 6 बट इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन था, अपोजिट डायरेक्शन था, रिवर्स था। तो राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव। तो वी हैव टेकन दिस नेगेटिव साइन, व्हाई, बिकॉज इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। से कैसा मूव हो रहा था ये, लेफ्ट साइड ऐसा मूव हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए वी हैव टेकन दिस एज माइनस साइन। व्हाट इज रेस्टिट्यूशंस, रेस्टिट्यूशन इज गिवन एज 0.7। तो v1 एंड v2 वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट वी हैव टू कैलकुलेट। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला आप लिख लेंगे। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, m1u1 प्लस m2u2 दैट इज इक्वल्स टू m1v1 एंड m2v2। m इज 100 बाई जी, वही आपने लिख लिया यहाँ पे। u1 इज 4, m2 क्या है देखो 80 बाई जी है, वो जैसे कि वैसे लिख दिए। u2 अलग डायरेक्शंस में था इसलिए माइनस साइन के लिए -6 लिख लिए। m इज सेम 100 जी। हियर वी हैव टू फाइंड आउट v1 एंड v2। तो हियर अभी वैल्यू नहीं मालूम है, तो वी विल टेक दिस एज सेम एज v1 एंड v2। अब देखो g कॉमन निकल के ये क्या होगा, दिस g एंड दिस g गेट कैंसल। तो अब देयर इज नो नीड टू यूज द वैल्यू, इसलिए मैंने अपन स्टार्टिंग स्टेज में वी हैव नॉट टेकन द वैल्यू ऑफ g, जस्ट वी हैव रिटन g एस, वी हैव नॉट पुट द वैल्यूज इन g। ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन 104 कितना होगा 400, और ये 80 इंटू 6 कितना होगा -480, माइनस साइन के साथ है ना। सिंपल वे में 100 ऐसी आ गया v1 के साथ और 80 v2 वैसी आ गया। तो अब v1 v2 का एक इक्वेशंस डिवीजन करने के बाद, एक सिंपल इक्वेशंस सॉल्व करने के बाद क्या बन गया, 5v1 प्लस 4v2 इज इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट ये थोड़ा सा एक रॉन्ग है। नेक्स्ट व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेस्टिट्यूशंस, रेस्टिट्यूशन का फार्मूला ये है। ठीक है ना, रेस्टिट्यूशन का फार्मूला क्या, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द रेस्टिट्यूशंस, ई इज इक्वल्स टू -v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ठीक है ना, ये माइनस क्यों लिए थे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में था और इट हैज़ बीन गिवन इन द फार्मूला। ठीक है। तो -v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो 0.7 इज द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चंस। -v1 v2 ये तो अपने को अभी मालूम नहीं है। u इज गिवन एज 4 माइनस एज इट इज आ गया। अब ये माइनस क्यों दिया था, क्योंकि वी हैव टेकन इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो u2 की वैल्यू क्या हो गई -6। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस हो गए ये दोनों में, माइनस माइनस प्लस हो गया और 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिए ये पूरे, मतलब दिस। तो इट्स प्रोडक्ट कम्स टू बी 6 प्लस 4 इज 10। तो 0.7 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू -v1 प्लस v2। अब ये राइट साइड लेके अब ये सिंपल कैलकुलेशंस में इक्वेशन क्या बन गया, -v1 प्लस v2 एज 7। ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 अभी था, इससे पहले में जो निकाले थे, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था। नेक्स्ट इज इक्वेशन नंबर 2 इज दिस पार्ट। साइमल्टेनियस 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशंस करके। तो व्हाट इज द वैल्यू v1 इज वैल्यू, इट कम्स टू बी -3.55 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, एंड v2 इट कम्स टू बी प्लस 3.44 मीटर पर सेकेंड। So in this way we have calculated the two values, we have calculated the final velocities of the two moving bodies v1 and v2 we have calculated. Next we can find out the loss of energy also. How to find out loss of energy, that is kinetic energy before impact, half m1u1 square plus m2u2 square, same formula is there, same we have put the values, we have taken as g as 9.81. तो kinetic energy before impact की value क्या होगी, in the form of joules 228.33। आफ्टर इम्पैक्ट में क्या हो गया, अभी ये वैल्यू अपने लिए थे v1 वी हैव जस्ट नाउ कैलकुलेटेड एज -3.55, v2 जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एज 3.44। तो अब वो वैल्यूज वी हैव टेकन एज दिस माइनस एंड दिस एज प्लस, और ये बाकी का सेम है 100 डिवाइडेड बाय 9.81 वाई बिकॉज इट इज़ g। तो आफ्टर इम्पैक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया वैल्यू 112.48। लॉस कितना होगा, लॉस इज नथिंग बट बिफोर माइनस, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो बिफोर माइनस आफ्टर दैट इज इक्वल्स टू लॉस कितना बन गया 115.87 जूल्स। ठीक है।
इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी v1 v2 जो है वो भी निकाल सकते हैं आप एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट इन एन वेरी इजीएस्ट वे वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट. तो हियर वी हैव टेकन दिस वैल्यू 150 आ गया था. यस, बिफोर इम्पैक्ट की वैल्यू कितनी थी? बिफोर इम्पैक्ट की वैल्यू, yes, again kinetic energy before impact here, same thing, it is somewhat different pages there. Yes, ये पेज इससे रिपीट हो गया था यहाँ पे. ओके, तो हियर द प्रॉब्लम इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. यहाँ पे जो प्रॉब्लम था इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे प्रॉब्लम इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. हियर दिस पेज इज एक्चुअली फॉर द डिफरेंट प्रॉब्लम. यस, next problem is 3 balls ABC. Ab here there are 3 balls ABC. These are the 3 number of balls. Previous case mein there were 2 balls A and B, or 1 and 2 we have given the names as 1 and 2. Here it has been given as ABC. यहाँ पे क्या नाम दिया देखो, इसने ABC नाम दिया. तीनों बॉल्स का नाम क्या दिया? ABC. Of weight 20 Newton, 60 Newtons and 80 Newton are moving in the same directions with velocities 10 मीटर पर सेकेंड, 4 and 2. मतलब इनिशियल किसका है? UA का वेलोसिटी 10 है, UB का वेलोसिटी 4 है और UC का वेलोसिटी कितना है? 2 है रिस्पेक्टिवली. इफ द बॉल A स्ट्राइक्स विद द बॉल B, A किससे स्ट्राइक हो रहा है? इट इज स्ट्राइकिंग एट B विच इन टर्न स्ट्राइक विद द बॉल C. मतलब ये दोनों मिलके किसको स्ट्राइक हो रहे हैं? C को स्ट्राइक हो रहे हैं. The coefficient of restitutions कितना है? The coefficient of restitution is given as 0.8. What we have to find out? Velocities of the balls after impact. मतलब that is VA, VB and VC we have to calculate. Loss of energy जैसा अभी निकाले थे loss of energy, वैसे loss of energy भी निकालना है. ठीक है, तो VA, VB, VA निकालना है आपको, VA, VB and VC, और loss of energy है ना, बिफोर एंड आफ्टर जो सब्सट्रैक्शन करके अभी निकाले थे, वैसे सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट, है ना. कंसिडर बॉल्स ए एंड बी. फर्स्ट दो बॉल्स कंसिडर करो, ए और बी. नेक्स्ट वी विल कंसिडर बी एंड सी. ठीक है, तो ए का वेलोसिटी 10 है मीटर पर सेकेंड. बी का वेलोसिटी क्या है? हियर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? 4 मीटर पर सेकेंड. ए का वेट कितना है? 20 डिवाइडेड बाई जी. इट इज़ इन, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मास, तो डिवाइडेड बाई जी 40 बाई जी. नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अभी दो ही बॉडीज़ का ले सकते हैं आप, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड विथ 2 बॉडीज़, बट हियर द 3 बॉडीज़ इज गिवन. तो फर्स्ट वी विल टेक ए बी, देन वी विल टेक बी सी. ठीक है, तो ए बी के लिए फार्मूला क्या होगा? वही एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दैट इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी बी बी. ये सिंपल फार्मूला इज देयर. मास आपने जैसे कि वैसे यहाँ पे मास ले लिए. एम ए का मास क्या था? 20 न्यूटन था डिवाइडेड बाई जी. यस, 20 न्यूटन डिवाइड बाई जी. यू ए 10 था, तो 10 एज इट इज़ ले लिए, और इसका मास कितना है? 40 डिवाइडेड बाई जी, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी इसका कितना है? वेलोसिटी इज़ 4. वी हैव टेकन दिस वेलोसिटी एज 4. नेक्स्ट, मास तो एज इट इज़ है, फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट है. एक इक्वेशन बन गया सेम वे में. द इक्वेशंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस एज वी ए प्लस 2VB दैट इज इक्वल टू 80. नेक्स्ट अब क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकालना है. इज इक्वल्स टू माइनस वी ए प्लस वी बी एंड डिवाइडेड बाई यू ए माइनस यू बी. ठीक है, यू ए माइनस यू बी. 0.8 we have taken here as 0.8, that is equals to minus VA VB. तो we have to calculate UA. just now it has been given in the questions, so 10 minus 4. previous में we have taken as minus, but here opposite direction में नहीं होने की वजह से we have taken as minus 4. ठीक है, so here the value it comes to be this value minus VA plus VB, that is equals to 4.8. ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4.8. नेक्स्ट, फ्रॉम 1 and 2. नेक्स्ट उसका जो था इसका पार्ट इट हैज़ बीन टेकन. अब ये इसका जो था नेक्स्ट पेज इट हैज़ बीन एट दिस, है ना. काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट के लिए फार्मूला क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इट इज़ 150.866. हाउ वी हैव कैलकुलेटेड? दैट इज़ हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर. ऐसे वी हैव टेकन एज दिस.
एंड आफ्टर इम्पैक्ट की वैल्यू फार्मूला क्या होगा 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर प्लस एम बी वी बी स्क्वायर प्लस एम सी वी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लास्ट में टेकन दिस, yes. After solving these two equations, after solving this 1 and 2 equations, V और VB की वैल्यू क्या आ गई 2.8 and 7.6. The value it comes to be 2.8 and 7.6. Now B strikes C. Again the formula it has been used as I've already said, A is striking B, B is striking C. So we can use the law of momentum for two bodies. First we have taken for AB, next we are taking for BC, ठीक है ना। तो एम बी यू बी, एम सी यू सी, एम बी वी बी एंड एम सी एन वी सी. Same for BC equations is there, restitution formula is same for BC is we have taken and we have solved these two equations. ये दोनों equations को क्या किया अपन ने solve किए, ठीक है, simultaneous equations. तो VB क्या हो गया 0.88 मीटर पर सेकेंड एंड VC क्या हो गया 5.36, ठीक है। इनिशियल में क्या था, B was 7.6 मीटर पर सेकेंड, अभी कितना आ गया 0.88 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बिफोर इम्पैक्ट में क्या रहेगा, हाफ एम ए यू ए स्क्वायर हाफ प्लस एम बी यू बी स्क्वायर एंड एम सी यू सी स्क्वायर. Just we have put the values. Mass is 20 by 9.81. Initial velocity was 10 square, 4 square and 2 square. तो ये बिफोर इम्पैक्ट का इसका जो था एक्चुअल में ये पेज यहाँ पे था. यस बिफोर इम्पैक्ट की वैल्यू क्या होगी 150.866 जूल्स एंड आफ्टर इम्पैक्ट में क्या रहेगा वी ए वी बी एंड वी सी, ठीक है. तो वी बी वी ए एंड बी, तो वी हैव टेकन द फाइनल वैल्यूज एज 0.88 स्क्वायर, ठीक है ना. वी बी की वैल्यू क्या ली आपने 0.88 स्क्वायर, वी हैव टेकन एज 0.88 स्क्वायर एंड वी सी वी हैव कैलकुलेटेड. तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट की वैल्यू होगी 126.715. लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा 150.866 माइनस में करेंगे इट विल बी 24.17 जूल्स, ठीक है. So in this way when three bodies they collide each others, so we can use again the law of conservation of momentum, but it is restricted for two bodies. We have taken initially as A and B, next we have taken as B and C, ठीक है. तो ऐसा we can easily calculate the final velocities for the body. We have calculated as VA, VB and VC. Next again if two spiral balls A and B are respectively traveling on a horizontal surface with velocities 20 meter per second and 8 meter per second. What is the velocity for VA? UA is 20 and UB is 8 meter per second from left to right. It is moving from left to right, that means in this directions. कैसे मूव हो रहा है left to right, मतलब ये left से लेके right तक, ठीक है. Initially sphere B is to the start of the sphere A by 40 meters. Initially क्या है sphere B is to the right of sphere A. B distance क्या है, it is having a distance D is also given as 40 meters. The weight of A and B are 20 newtons and 80 newtons respectively. In this problem instead of here the distance is also given, यहाँ पे क्या है distance भी given है, ठीक है. तो find the values which things we have to calculate, find when and where will they collide. We have to find out the distance. If the coefficient of restitution is 0.6 and calculate the velocities after impact. We have to find out the calculate after impact also. Next is time is also given if the impact lasts for 0.02 seconds. Yeah, this t is also given here, d is also given, distance is also given. Find average impact force. We have to find out the average impact force. क्या निकालना है आपको, average impact force निकालना है, ठीक है. We have to find out the average impact force. फर्स्ट बॉडी का वेट क्या था 20 न्यूटन, सेकेंड बॉडी का वेट है 80 न्यूटन. डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 40 विच हैज बीन गिवन दिस 40 मीटर्स. इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स 20 लेफ्ट टू राइट, दोनों भी लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, बट दोनों का डिस्टेंस है ये थोड़ा पीछे इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, ठीक है. मूविंग वेलोसिटीज आर 20 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी क्या रहता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. So 20 is the distance, velocity is 20. Initial it has been given as 20 meter per second. Horizontal surface का सबसे पहला velocity कितना 20 है. That is equals to distance is dA divided by t, ठीक है. तो dA का क्या बन जाएगा 20t. वैसे ही ब्लॉक B के लिए velocity is equals to distance by time second, इसके लिए यूज़ करेंगे तो dB क्या बन जाएगा, distance क्या बन जाएगा 8 into t, because 8 was the velocity for the second, ठीक है.
here in the form of distance and in the form of time we have calculated. Okay. But dA is equals to 40 dB क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में सेंटेंस गिवन था, तो dA is equals to dA क्या है, dB के 40 डिस्टेंस से आगे है, ठीक है ना, तो dA is equals to 40 प्लस dB, तो dA कितना है 20t है और 40 एज इट इज़ है। ये क्वेश्चन दिस सेंटेंस इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 20t we have put the values as d as 20t plus 40 plus 8t we have put the values as 8b का db का वैल्यू क्या लिए यहाँ पे 8t। तो t कितना हो गया सेकेंड्स में, इट इज़ 3.33 सेकेंड्स। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन कितना हो गया, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन इज 3.33। अगेन डिस्टेंस फॉर कोलिजन क्या होगा 20 इंटू टी, तो 20 इंटू टी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर कोलिजन 66.67, वैसे डिस्टेंस ऑफ कोलिजन ऑफ बी इज 8t था, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.33 क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 26.67 मीटर्स, ठीक है। नाउ we are using the law of conservation of momentum before and after impact. The same formula is used for before and after impact का जो formula था वही formula से we will find out this things. The mass is that is equals to in the form of 20 divided by g. Initial velocities is given, these are the two initial velocities is given. Final velocity we have to calculate, so we have taken as v and vb. तो एक इक्वेशन बन गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस। तो अगेन ई फॉर्म में अगेन देयर इज एन इक्वेशंस माइनस वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 7.2। सॉल्विंग दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, द वैल्यू ऑफ आवर वी ए एंड वी बी इट कम्स टू बी 4.64 मीटर पर सेकेंड एंड 11.84 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर एवरेज इम्पैक्ट फोर्स, एवरेज अगर इम्पैक्ट फोर्स निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, फॉर ए एवरेज इम्पैक्ट फोर्स इज एफ टी इज इक्वल्स टू एम ए फाइनल वेलोसिटी वी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो एफ फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज that is average impact force we have to find out. T, the time it has been given as 0.02 in the questions, 20 by 9.81. Final velocity just now we have calculated VA as 4.64 we have taken here directly. UA it has been given in the questions, UA value it has been given in the questions 20. So final force that is the impact force after calculating it comes to be F is equals to minus 156.1565.75 newtons, ठीक है। फॉर बी इट इज़ सेम बिकॉज इट इज़ मूविंग आफ्टर कोलिजन, एक माइनस आ गया तो दूसरा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज एवरेज है इसका, इसलिए फर्स्ट इज माइनस नेक्स्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। So in this way this impact problems will be taken care, this impact problems has been solved here. The simplest problems are there, so you can easily solve these problems. Here we will end this today's lectures. Thank you everyone, thank you. If anyone having doubts or queries they can ask, okay. Thank you everyone.